پھر قریش کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور بنی ہاشم پر کیا گیا ظلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پھر ان پر کیا بیتی؟ بنی ہاشم اس سوشل بائیکاٹ کے نتیجے میں خوف آنکھ حد تک بھوک برداشت کر رہے ہیں۔ ان کی زندہ بچ جانے کی صورت اربوں کی قوتیں برداشت اور سال کے 4 مہینے جنہیں حرام مہینے کہا جاتا ہے، شپ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا خاندان درختوں کے پتے اور جانوروں کی کھالیں ابال کر کھانے پر مجبور ہے۔ چارہ نہ ملنے کی وجہ سے بھیڑوں اور اونٹوں کے دودھ خشک ہو گئے ہیں۔ خیموں میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی موجود نہیں۔ رات مکمل اندھیرے میں گزرتی ہے۔ سعد بن ابی وقاص بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جو شیپ میں محصور ہیں۔ سعد بتاتے ہیں، ایک رات مجھے بھوک تھی۔ اس رات میرے پاؤں کے نیچے کوئی چیز آ گئی۔ میں نے اسے اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالا، وہ نکل گیا۔ آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کیا چیز تھی۔ ایک اور موقع پر مجھے اونٹ کی کھال کا خشک ٹکڑا ملا۔ میں نے اسے دھو کر آگ میں بھون کر پیس لیا اور اس پیسے ہوئے سفوف کو پانی میں ملا کر پیتا رہا۔ یوں میں نے 3 دن گزار لیے۔ شیب ابی طالب میں محصور لوگ کیکر اور درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ان کے جبڑے درد کرتے ہیں۔ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر مشہور کر رکھا ہے، جبکہ ان کے پاس رسول اللہ کو جادوگر ثابت کرنے کی کوئی دلیل موجود نہیں۔ وہ ہر وقت اس کوششیں میں رہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بات کہی جائے جو وہ پوری نہ کر سکے۔ قریش کو ہر بار ناکامی کا سامنا دیکھنا پڑتا ہے۔ انس بن مالک بتاتے ہیں، سورج غروب ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے ساتھ شیب سے نکل کر وادی منع کی طرف جا رہے تھے کہ ولید بن مغیرہ، ابو جہل، عاص بن وائل، عاص بن ہشام، اسود بن عبد یغوث، اسود بن مطلب بن اسد، زما بن اسود، نضر بن حارث بن علقمہ اور دوسرے کئی سردار انہیں راستے میں ملے۔ ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا اور تنزیانہ لہجے میں کہا، ابی عبداللہ، اگر تم اللہ کے سچے رسول ہو تو اپنے رب سے کہو کہ وہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے۔ اگر ایسا ہو گیا تو ہم رسول اللہ پر ایمان لے آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اگر ایسا ہو جائے تو کیا تم لوگ ایمان لے آؤ گے؟ وہ بولا، ضرور، ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ابو سلمہ بن عبد الاسد اور ارکم بن ابو ارکم، تم اس بات پر گواہ ہو جاؤ۔ یا اللہ، تو بھی گواہ رہنا۔ قریشی مکہ کو یقین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کر سکیں گے۔ رسول اللہ نے اپنے رب کے حضور دعا مانگی کہ اے میرے رب، اس مطالبے کو پورا کرنے کی طاقت عطا فرما۔ اللہ کریم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیا اور اسے 2 ٹکڑے کر دیا۔ ایک ٹکڑا دائیں طرف اور دوسرا ٹکڑا بائیں طرف چلا گیا۔ آدھا چاند دائیں طرف موجود ہے اور آدھا چاند بائیں طرف موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں موجود قریشی سرداروں کو نام لے کر کہا، اے عمرو بن ہشام، اپنی آنکھوں سے دیکھ لو،
चांद 2 टुकड़े हो गया, अब तुम इस पर गवाह रहना, मैंने तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी। चांद काफ़ी देर तक 2 टुकड़े रहा और फिर वापस जुड़ गया। तारीखी से शुक्ल कमर कहती है। कुरान मजीद बयान करता है, क़यामत करीब आ गई है, जिसकी निशानी ये है, चांद 2 टुकड़े हो गया। ये लोग अगर अल्लाह की कोई निशानी देखते हैं तो इस पर गौर करने की बजाय कहते हैं, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त चलता हुआ जादू है। अब्दुल्ला बिन मसूद रवायत करते हैं, कुरैश ने ये मौजज़ा देखा तो ईमान लाने की बजाय कहने लगे, अबू कब्शा के बेटे ने हमारी नज़र बंद कर दी, इसने हमारी नज़रों पर जादू कर दिया। तजारती काफ़िले मुख्तलिफ जगह पर सफ़र कर रहे हैं, अगर चांद 2 टुकड़े हुआ होगा, इन्होंने भी देखा होगा। जब वो मक्का आएंगे तो हम इनसे पूछेंगे। अबू कब्शा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई वालिद हारिस की कुनियत से अरब में किसी को इज़्ज़त देने के लिए या तो उसको कुनियत से बुलाया जाता है या वालिद के नाम से। कुरैश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनकी कुनियत अबुल कासिम या इनकी हकीकी वालिदा की निस्बत से इब्ने अब्दुल्ला कहने के बजाय इनको इब्ने अबू कब्शा कहकर सोचते हैं कि इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कमतर हवाले से बुलाया है। कुरैश भूल बैठे हैं कि इज़्ज़त देने वाली तो ज़ात उस कायनात का मालिक है। इस वाक़े के कुछ दिनों बाद काफ़िले मक्का पहुंचना शुरू हो गए। कुरैश को यकीन है कि चांद के 2 टुकड़े होना वाक़या हकीकी नहीं, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन पर जादू कर दिया था, जिसकी वजह से इन्हें ऐसा नज़र आया। वो बड़े यकीन के साथ आने वाले काफ़िलों से चांद के टुकड़े होने का पूछ रहे हैं। काफ़िले वाले इस बात की तस्दीक करते हुए कह रहे हैं, ज़ुल्हिज की 14 तारीख को हमने चांद के 2 टुकड़े होते देखे और ये भी देखा दोनों टुकड़े अलग अलग हो गए। हिंदुस्तान में राजा मालाबार ने चांद के 2 टुकड़े देखे। राजा मालाबार ने अपनी मजहबी किताबों में आखिरी नबी के हाथों चांद का 2 टुकड़े होना पढ़ रखा था। इस मौजज़े को देखने के बाद राजा मालाबार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आया। चांद की सतह का जायज़ा लेने के लिए जुलाई 1971 ईस्वी में अमरीकी इदारा नासा ने अपोलो 15 चांद पर भेजा। इस मिशन ने चांद की सतह की तस्वीरें ली तो इन्हें तकरीबन 100 किलोमीटर लंबे शगाफ के निशान नजर आए। अच्छी रोशनी और ताकतवर दूरबीन की मदद से ये शगाफ ज़मीन से भी देखा जा सकता है। शेब अबी तालिब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 साल घर के बर्तनों और दूसरे सामान के बगैर गुजारे। अपने शहर में रहते हुए भी ऐसा है जैसे किसी जंगल या सहरा में रह रहे हों। सैयदना खदीजा के पास बस एक हंडिया और एक कूज़ा है, ये भी टूट गया है, नया कूज़ा नहीं खरीदा जा सकता। दिन रात इसी तरह सब्र में गुजर रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके घर वालों के पास पानी पीने के लिए बर्तन भी नहीं। एक दिन शेब अबी तालिब के करीब से बर्तन जोड़ने वाला गुजरा तो सईदा ने अपना कोज़ा मरम्मत करवाया और इसे दोबारा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सैयदना खदीजा बिलाशुबा मक्का की सबसे अमीर खातून थी। कहाँ सैयदा का सामान तिजारत और मुनाफा मक्का के बाकी तमाम ताजरों के मजमूई सामान से भी ज़्यादा हुआ करता था, और कहाँ पानी पीने के लिए बर्तन भी नहीं। वफ़ा और मोहब्बत से बनी हुई इस अजीम शख्सियत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कभी शिकवा नहीं किया। हमेशा ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान और माल मोहब्बत सब कुछ कुर्बान किया और इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करती थी। सईदा खदीजा की उम्र इस वक्त 65 साल है। ज़रा अंदाज़ा करें कि नाज़ों में पलने वाली, अमीरी और आसानियों में ज़िंदगी गुजारने वाली, सच का साथ देने, हक पर खड़े रहने की वजह से शेब में भूख और प्यास बर्दाश्त करने पर मजबूर कर दी गई। इन्हें दरख्तों के पत्ते
और जानवरों की खाले खाने पर मजबूर कर दिया गया। इन सख्तियों की वजह से सैयदा बीमार पड़ गई, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ छोड़ने को तैयार नहीं हुई। हशाम बिन अम्र अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाए और इनके परदादा की बनी हाशिम से करीबी रिश्तेदारी है। हशाम बिन अम्र का ताल्लुक बनी आमिर बिन लोई से है। हशाम बनी हाशिम से सुलह रहमी करते हैं। मौका मिलने पर हशाम ऊँटों पर खाने पीने का सामान लाकर शेब अबी तालिब के पास आकर ऊँट के सर से कुरैश नुकील उतार लेते और ऊँट के पहलू पर ज़रब लगाते तो वो शेब अबी तालिब में दाखिल हो जाता। हशाम इस तरह बनी हाशिम तक खाने पीने का कुछ सामान पहुंचा देते हैं, लेकिन ऐसा कभी कभार ही हो पाता है। एक रात हशाम बिन अम्र खाने पीने की चीज़ों से लदे हुए 3 ऊँट शेब अबी तालिब में छोड़ आए। कुरैश मक्का के इल्म में ये बात आई तो वो इकट्ठे होकर हशाम के पास आ गए। हशाम ने इन्हें यकीन दिलाया कि आइंदा वो ऐसा नहीं करेंगे जिससे कुरैश नाराज़ होंगे। सब लोग इत्मीनान करने के बाद वापस चले गए। हकीम बिन हज़ाम सैयदा खदीजा का भतीजा है और अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाया। इसने गंदम खरीदी और अपनी फूफी जान को पहुंचाने के लिए शीप की तरफ जा रहा है। रास्ते में हकीम की मुलाकात अबू जहल से हुई। अबू जहल पूछ रहा है, ये गंदम कहाँ ले जा रहे हो? हकीम बताता है, मैं गंदम अपनी फूफी जान के लिए लेकर जा रहा हूँ। अबू जहल ने हकीम का रास्ता रोकते हुए कहा, ये गंदम तुम बनी हाशिम के पास लेकर नहीं जा सकते। हकीम और अबू जहल में बहस हो रही है। अबुल बख्तरी हशाम का इधर से गुजर हुआ है और अबुल बख्तरी भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं रख। अबू जहल को समझाने की कोशिश कर रहा है कि हकीम को गंदम ले जाने दो, लेकिन अबू जहल किसी तरह मानने को तैयार ही नहीं। बहस बढ़ती चली जा रही है, बात हाथापाई तक पहुंच गई है। अबुल बख्तरी ने करीब पड़ी ऊँट की हड्डी उठाई और अबू जहल के सर पर दे मारी। इसके बाद अबू जहल को जमीन पर गिराकर पाँव से रौंदा है। हकीम गंदम की बोरी सैयदा खदीजा को पहुंचाने में कामयाब हो गया। कुछ दिन बाद हशाम ने मौका पाकर खाने पीने का सामान शेब में पहुंचा दिया। इस बार कुरैश इनके साथ सख्ती से पेश आएंगे और इन्हें मारने का इरादा कर लिया। अबू सुफियान बिन हर्ब के इल्म में आया तो वो कुरैश से कह रहे हैं, हशाम को छोड़ दो, इसने अपने रिश्तेदारों के साथ सुलह रहमी की है। मैं खुदा की कसम उठाकर कहता हूँ, हमें भी बनी हाशिम के साथ ऐसा ही सलूक करना चाहिए था। हम ऐसा करते तो ज़्यादा अच्छा होता। हमने बनी हाशिम के साथ जो सलूक किया है, मैं इसे पसंद नहीं करता। दुश्मनी इससे बेहतर अंदाज में भी की जा सकती थी। अबू सुफियान की बात सुनकर सब लोग खामोशी से वापस अपने घर को चले गए। चाचा जान का मुआहिदा कुरैश ने हमारे खिलाफ लिखकर काबे में लटका दिया। जो मुआहिदा कुरैश ने हमारे खिलाफ लिखकर काबा में लटका दिया था, इसको दीमक ने चाट लिया है। कुरैश खाए पिए, कपड़े पहने, तिजारत करें और बनी हाशिम बर्बाद हो। इनके बच्चे भूख और प्यास से तड़पें। जब मोहम्मद नहीं रहेगा तो इसका दीन कैसे बाकी रहेगा? अगला पार्ट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अगर आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, कमेंट में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।